خطبہ جمعہ کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے تقویٰ اور استغفار کے حیرت انگیز فائدے۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے، دن رات گناہیں کرتا رہتا ہے، خطائیں کرتا رہتا ہے، بھول چوک کرتا رہتا ہے، انسانوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو گناہ نہ کرتا ہو۔ جتنے بھی انسان دنیا کے اندر ہیں سب کے سب گناہگار ہیں، سب کے سب خطاکار ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں گناہ نہیں کرتا ہوں، میرے اندر کوئی غلطیاں نہیں ہے، میرے اندر کوئی خامیاں نہیں ہے، میرے اندر کوئی برائی نہیں ہے، تو وہ انسان سب سے بڑا جھوٹا انسان ہوگا، کیونکہ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے کل بنی آدم خطاء، آدم کے بیٹے جتنے بھی ہیں تمام کے تمام گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، سب کے سب چاہے بیٹے ہو یا بیٹیاں ہو، کوئی بھی دنیا کے اندر انسان نہیں ہے جو معصوم ہو۔ صرف ایک ہستی نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم عن الخطا کہا گیا۔ باقی دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، لیکن گناہگار تو سب ہے ہی، خطاکار سب ہیں، لیکن ان گناہگاروں کے اندر بھی بہتر انسان ہیں، ان گناہگاروں کے اندر بھی افضل انسان ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی کر دی کہ کل بنی آدم خطاء، تمام کے تمام بنی آدم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں وہ خیر الخطائین التوابون، ان گناہگاروں میں، ان خطاکاروں میں سب سے بہتر اور سب سے افضل انسان وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کرتے ہیں، کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں، التوابون، وہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہوں، کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں، رونے والے ہوں، گر گرانے والے ہوں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوں، اللہ کے سامنے فریادیں کرنے والے ہوں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے معافی مانگنے والے ہوں، وہ خیر الخطائین التوابون، ان تمام گناہگاروں میں جتنے بھی خطاکار گناہگار آدم کے بیٹے ہیں ان تمام میں سب سے بہتر انسان، سب سے افضل انسان وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو کثرت کے ساتھ، جو کثرت سے اللہ رب العالمین کو معافی مانگنے والے ہو، وہ بہتر انسان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی آسمان کے اوپر غلطی کی، اور ابلیس نے بھی غلطی کی، دونوں نے غلطیاں کی۔ اللہ نے ابلیس کو کہا سجدہ کرنے کا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا فلا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب مت آنا، مگر دونوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ابلیس نے سجدہ نہ کر کے اللہ کی نافرمانی کی، آدم نے اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا نہ لا کر کے اللہ کی نافرمانی کی۔ دونوں کو اللہ نے آسمان سے اتار دیا، زمین کے اندر بھیج دیا، آدم کو بھی جنت سے نکال دیا، مگر آدم علیہ السلام کو احساس ہوا اپنے غلطی کا، اپنے گناہوں کا انہیں احساس ہوا، اور آدم و حوا نے فوراً اپنے رب سے توبہ کی اور فوراً اپنے رب سے معافی مانگی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ہم نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، اللہ اگر تو ہمارے اوپر رحم نہ کرے تو اللہ ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے، ہم تو بہت بڑے گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، ہم تو بہت بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ آدم و حوا نے فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور اپنے رب سے معافی مانگی۔ سب سے پہلے
کہ ابلیس ہم نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا، کون سی چیز رکاوٹ بن گئی تمہارے بیچ میں کہ تمہیں سجدہ کرنے سے روک دی؟ آخر کس نے تمہیں روکا سجدہ کرنے سے؟ تو ابلیس نے اپنا عقل لگایا اور انا کا لفظ استعمال کیا، اور اسی انا کی وجہ سے وہ فنا ہو گیا۔ کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اپنے آپ کو بہتر سمجھا، کہا کہ میں بہتر ہوں کس سے؟ آدم سے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اس لیے میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے میں نے اسے سجدہ نہیں کیا۔ اپنے عقل کو لگایا اس نے اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا اللہ غلطی ہو گئی، یہ نہیں کہا اللہ معاف کر دے، بلکہ یہ کہا کہ میں اسے کیسے سجدہ کر سکتا ہوں جبکہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اسی انا کی وجہ سے آج پورے انسان بنا ہو رہے ہیں، کیونکہ ابلیس نے جو چال چلی ہے اور لوگوں کے اندر جو وسوسہ ڈالی ہے، یہی انا کی وجہ سے۔ جبکہ بہتر انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے دنیا کے اندر، کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر انسان جاننا چاہتے وہ کون ہے؟ کہا کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی گورے انسان کو کسی کالے انسان کے اوپر کوئی بھی فضیلت حاصل نہیں ہے، کوئی بھی بڑائی کوئی بھی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اگر فوقیت حاصل ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فضیلت اگر حاصل ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر۔ تقوی اگر دل کے اندر ہے، پرہیزگاری اگر دل کے اندر ہے، خوف خدا اگر دل کے اندر ہے، تو تقوی کی بنا پر ہی وہ کیا فضیلت والا انسان ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی تھے اور حبشی تھے، بالکل کالے کلوٹے بدصورت تھے، کوئی خوبصورت نہیں، کالے کلوٹے تھے، حبشی انسان تھے، مگر پھر بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ان کے قدم کی آواز سنتے ہیں کہ بلال کے چلنے کی آواز سن رہے ہیں۔ بتائیے چلا کہ جس دل کے اندر تقویٰ ہو، جس دل کے اندر خوف خدا ہو، جس دل کے اندر پرہیزگاری ہو اور جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، جو استغفار کرنے والا ہو، کثرت سے اللہ کے سامنے معافی مانگنے والا ہو، وہی انسان بہتر انسان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، تمام کے تمام آدم کے بیٹے یہ گناہگار ہیں، لیکن ان گناہگاروں میں سب سے اچھا اور بہتر انسان وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرنے والا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں تقویٰ اور استغفار دونوں موضوع میں ایک ساتھ لے کر کے آپ کے سامنے چلا ہوں۔ تقویٰ کے کیا فائدے، استغفار کے کیا فائدے؟ بہت سارے، دنیا میں بھی فائدے ہیں اور آخرت کے اندر بھی فائدے۔ پہلا فائدہ دیکھیے، جو انسان استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے، ایسا بندہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ ایسے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بہت زیادہ اسے پسند کرتا ہے، کہ اللہ کا چہیتا بندہ بن جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر ایک انسان سے کوئی اونچا مرتبہ والا اعلیٰ مقام پر اگر کوئی فائز ہے دنیا کے اندر، اس سے اگر ہمارا جان پہچان ہو جاتا ہے تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں، وہاں سے میرا لگاؤ ہے، ان کے سامنے جا کے بیٹھتے ہیں، فوٹو بھی ساتھ میں کھینچا لیتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو ثبوت دے سکیں کہ فلاں ہستی سے میرا لگاؤ ہے، ہم ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہوتا ہے، بات چیتیں ہوتی ہیں، وہ ہمیں بہت مانتا ہے۔ تو یہ دنیا کا اگر کوئی معمولی انسان سے جو اونچے مرتبہ پہ ہو تو انسان اتنا فخر محسوس کرتا ہے، اور ایک ایسا بندہ جس سے اللہ محبت کرتا ہو اور اللہ اسے پسند کرتا ہو، وہ اس کے اندر کس طرح کا سکون اور اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ کا وہ محبوب بندہ ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقینا اللہ تعالیٰ یہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، وہ پسند کرتا ہے، وہ اللہ کا چاہیدہ بندہ بن جاتا ہے، وہ یحب المتطہرین، اور جو
पाकीज़ा इंसान है, जो पाक साफ रहने वाला इंसान है, ऐसे इंसान से भी अल्लाह मोहब्बत करता। पहला फायदा। दूसरा फायदा देखिए, सूरह ताहा आयत नंबर 82 के अंदर अल्लाह ताला बयान फरमाता है, वइन्नी लगफ़ारुन लिमन ताबा व आमना व अमिला सालिहन सुम्मा इहतदा। यकीनन मैं उनके गुनाहों को माफ कर देने वाला हूँ, बख्श देने वाला हूँ। वइन्नी लगफ़ारुन, यकीनन बेशक मैं उनके तमाम के तमाम गुनाहों को माफ कर देने वाला हूँ जो ईमान लाए और नेक अमल करे, सुम्मा इहतदा, फिर उस पर वो बरकरार रह जाए, डट जाए उस पर। ये नहीं कि गुनाहों का एक अकाउंट है, हमने बंद किया फिर दूसरा अकाउंट चालू कर दिया। अल्लाह ताला ऐसे बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देता है, जिस तरह अल्लाह ने आदम और हव्वा के गुनाहों को माफ फरमा दिया। इसी तरह जो शख्स दिल से तौबा करता है, जो भी इंसान, अल्लाह ताला ऐसे इंसानों के गुनाहों को खताओं को अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। अब आइए तीसरा फायदा देखते हैं, चौथा फायदा देखते हैं, पांचवा फायदा देखते हैं। सूरह तलाक की आयत नंबर 2 के अंदर अल्लाह ताला बयान फरमाता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, जो कोई भी अल्लाह से डरता है, जो कोई तकवा इख्तियार करता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, तो अल्लाह ताला उसके लिए हर मुसीबत और हर परेशानी से उसे छुटकारा दे देता है। जो कोई अल्लाह से डरता है, जो कोई तकवा इख्तियार करता है, तो अल्लाह ताला हर मुसीबत से, हर परेशानी से छुटकारे का रास्ता उसके लिए आसान कर देता है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, आयत नंबर 3 के अंदर अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि उसे ऐसी जगह से रोजी देता है जहां से उसका गुमान भी ना हो, जहां से उसका कुछ ख्याल भी ना हो, जहां के बारे में उसके अंदर कुछ वहम और गुमान भी नहीं था, ऐसी जगह से अल्लाह ताला रोजी देता है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, इंसान सोचता है कहां से इंतजाम होगा, कहां से आएगा, किसके पास जाए, किससे मांगे, लेकिन वो बंदा इंतजार करता है फलां के पास जाए या फलां के पास जाए, कहां जाए, घर कैसे चलेगा, इंतजाम कैसे होगा, कैसी जरूरतें पूरी होगी, कहां से आएगा, इंतजार में है। लेकिन ख्याल करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन को, भरोसा है अल्लाह के ऊपर, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु, वो भरोसा करता अल्लाह के ऊपर, आएगा कहां से आएगा, और आता है इसी जगह से जहां से उसने गुमान भी नहीं किया था। सोचा था फलां के पास जाऊंगा, लेकिन आता कहीं और से है। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु, जो कोई अल्लाह के ऊपर भरोसा करता है, अल्लाह ताला उसके लिए काफी हो जाता है। वमन यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रोजी देता है जहां से उसका वहम भी नहीं था, जहां के बारे में उसे गुमान भी नहीं था, ख्याल भी नहीं था कि हमें यहाँ से रोजी आएगी, हमें इधर से रोजी आएगी, लेकिन ऐसी जगह से अल्लाह रोजी दे देता है इस बंदे को। वमन यत्तकिल्लाह, जो कोई अल्लाह से डरता है, जो कोई तकवा इख्तियार करता है, ऐसे बंदे को अल्लाह ताला इसी जगह से रोजी देता है जहाँ के बारे में उसे कुछ वहम भी ना हो, गुमान भी ना हो। आयत नंबर 4 के अंदर देखते हैं, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मिन अम्रिही युस्रा, जो कोई तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर पैदा करता है, तकवा इख्तियार करने वाले का अल्लाह ताला बयान फरमाता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मिन अम्रिही युस्रा, उसके हर कामों में आसानी पैदा फरमा देता है। हर काम, चाहे जो कोई भी काम हो, हर काम में अल्लाह ताला उसके लिए आसानी पैदा कर देता है। चाहे कितना भी हार्ड काम हो, कितना ही बड़ा काम हो, चाहे कितना ही पेचीदा काम हो, चाहे वो उस काम से मायूस हो चुका हो, लेकिन अल्लाह ताला हर काम में उसके मसले को आसान कर देता है। आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला बयान फरमाता है, वमन यत्तकिल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही व युज़िम लहु अजरा, जो कोई अल्लाह से डरता है, अल्लाह ताला उसके गुनाह को बिल्कुल मिटा देता है, बिल्कुल से गुनाहों से पाक व साफ कर देता है। व युज़िम लहु अजरा, और उसे बहुत बड़ा, युज़िम लहु अजरा, बहुत बड़ा और बहुत भारी अजर उसे अता फरमा देता है। ये फायदे हैरत अंगेज
जिक्र करने के, इस्तिग़फ़ार करने के, तौबा करने के। आइए एक हदीस देखते हैं, तफसीर इब्न कसीर में बयान किया गया है। हज़रत मालिक अज़्ज़ई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसके बेटे को दुश्मनों ने अगवा कर लिया, अपहरण कर लिया उसके बेटे को। काफिरों ने, मुश्रिकों ने, दुश्मनों ने अपहरण कर लिया, जेल खाने में, कैद खाने में ले जाके डाल दिया। मालिक अज़्ज़ई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे और को दुश्मनों ने कैद कर लिया है, जेल खाना के अंदर है, हमें उसकी परेशानियां, मुसीबतें, हमें उनकी मुशक्कतें ख्याल आती है, बेचैन हो जाता। उनकी मुसीबतों का ये चर्चा करते हैं, ख्याल करते हैं नबी के पास। अल्लाह के नबी कहते हैं सब्र करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करो, इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो। अल्लाह ताला बहुत जल्द मामले को आसान कर देगा, कोई रास्ता निकाल देगा। और दूसरी रिवायत तफसीर इब्न कसीर के अंदर ही सीरत इब्न इसहाक़ के हवाले से बयान की गई है कि जब हज़रत औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, मालिक अज़्ज़ई के बेटे औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कैद खाने के अंदर दुश्मनों ने कैद करके रखा था, जेल खाने के अंदर रखा था। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबा से कहा कि जाओ उसे जाके कह दो कि वो कसरत से इस्तिग़फ़ार करे और बहुत ज्यादा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करे। कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करे, जाओ उसे जाके कह दो। चुनांचे लोगों ने जाके कह दिया। अब वो कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ रहे हैं। कैद खाने के अंदर बेटा पड़ा हुआ है, जेल खाने के अंदर। कुछ दिनों के अंदर अचानक ऐसा हुआ कि अपने आप उनकी बेड़ियां, जंजीरें टूटने लगी, अपने आप जंजीरें टूट गई, बेड़ियां टूट गई। अब टूटने के बाद वो बेड़ियों से जब आजाद हो गया तो कैद खाने से वो भागा। भागने के बाद वो सामने में उसको एक ऊँट मिली, उस ऊँट के अंदर वो चला। अब ऊँटनी के पीछे वो, ऊँटनी के साथ वो जाने लगा। रास्ते में और बहुत सारी ऊँटनियां मिली, वो सारी की सारी ऊँटनियां उनके पीछे पीछे भागने लगी। दुश्मनों ने देखा, दुश्मन उनके पीछे पीछे दबे, मगर दुश्मन नाकाम रहे और उनके पहुंच से वो बाहर रहे, वो निकल गए और दुश्मन नाकाम और मायूस होकर वापस आए। और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर पहुंचते हैं, घर में जाके दरवाजे को दस्तक देते हैं। अंदर से मालिक अज़्ज़ई कहते हैं अपनी बीवी से, ये आवाज मुझे औफ की आवाज लग रही है, लगता है औफ आ चुका है। माँ कहती है हाय अफसोस, वो कहाँ से आएगा, वो जेल खाने में पड़ा हुआ है, वो कैद खाने में जंजीरों में जकड़ा हुआ है, वो कहाँ से आ सकता है। लेकिन वो दोनों उठे और उनके साथ उनका खादिम भी था, उनका नौकर भी था। ये तीनों दरवाजे के पास आए, दरवाजे को उन्होंने खोला, देखा सामने औफ खड़ा है और उनके सामने बहुत सारी ऊँटनियां भी खड़ी है। कहा औफ, ये सारी ऊँटनियां कहाँ से आई, सारा वाकया कह के सुना दिया, ऐसा मामला है। कहा रुको, मैं पहले अल्लाह के नबी के पास जाता हूँ, जाके नबी से सवाल करता हूँ, पूछता हूँ नबी इस बारे में क्या कहते हैं। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, जाके कहते अल्लाह के नबी बेटा वापस आ गया, मगर साथ साथ बहुत सारी ऊँटनियां भी आ चुकी है, मैं क्या करूँ ऊँटनियों को। कहा जाओ मालिक अज़्ज़ई, वो सारी की सारी ऊँटनियां, वो सब तुम्हारी ही ऊँटनियां हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें अता फरमा दिया है। वहाँ ये आयत उतरी, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो कोई तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रोजी देता है जहाँ से उसका उठाव और गुमान भी ना हो। पता चला कि तक़वा के कितने जबरदस्त फायदे और इस्तिग़फ़ार के कितने बड़े फायदे। इसीलिए एक और रिवायत में है कि जो आदमी अपनी हाजतों को, जरूरतों को लोगों के हवाले करता है, लोगों के पीछे पीछे दौड़ते रहता है, भागते रहता है, अल्लाह ताला उसके रास्ते को और ज्यादा मुश्किल कर देता है। और जो इंसान अल्लाह के पीछे भागता है, अल्लाह उसके रास्ते को बिल्कुल आसान कर देता है और उसे ऐसी जगह से
रोजी देता है जहां से उसका वहां को गुमान भी ना। एक रिवायत में कि जो शख्स सारी दुनिया से यकसू होकर अल्लाह की तरफ आ जाता है तो अल्लाह ताला उसके हर मामले को आसान कर देता है, उसे इसी जगह से रोजी देता है जहां से उसका वहां को गुमान भी ना हो। और जो शख्स अल्लाह को छोड़कर दुनिया की तरफ चला जाता है तो अल्लाह ताला उसे दुनिया के अंदर ही लगा देता है। मेरे भाई और दोस्तों, तौबा इस्तिग़फ़ार के बहुत सारे फायदे, आइए एक फायदा मैं आपके सामने और बयान कर रहा हूं। इमाम अहमद बिन हंबल का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े इमाम थे। इमाम बुखारी के भी उस्ताद थे इमाम अहमद बिन हंबल। एक मरतबा उनका कहीं बाहर जाना हुआ, एक ऐसी जगह में गए जहां मस्जिद वालों ने उन्हें मस्जिद के अंदर रहने की इजाजत नहीं दी। रात का वक्त था, मस्जिद के जिम्मेदार और कमेटियों का जो एक रोल होता है, नियम होता है, कमेटियों ने बताया कि किसी भी अजनबी इंसान को, बाहर के इंसान को रहने की इजाजत मस्जिद में नहीं है। चुनांचे इजाजत नहीं मिली महाराज की, लोग तो पहचानते भी नहीं थे कि ये इमाम अहमद बिन हंबल। चुनांचे एक आदमी का गुजर उसी रास्ते से हो रहा था, उसने कहा मैं आपको अपने घर में अपना मेहमान बना लेता हूँ। चुनांचे वो अपने इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को अपने घर लेकर के चले जाते हैं और घर जाकर के उनकी मेहमान नवाजी के लिए तरह तरह के इंतजाम करना शुरू कर देते हैं। चूल्हा जलाते हैं और उनकी ज़बान हर हमेशा अल्लाह के ज़िक्र अज़कार से तर है। चूल्हा जलाते हैं, लकड़ियां लाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह 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 कहते हैं, आटा गूंथते हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। एक मिनट के लिए उसकी ज़बान नहीं रुकती, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। रोटी पकाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह 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 कहते हैं। रोटी पक के तैयार हो जाती है, दस्तरखान लगाया जाता है, आते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, मिनट भर जाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ज़बान रुकती रही है। इमाम अहमद बिन हंबल की परेशानी को देख करके ये बंदे को कैसी भूल लगी है, हमेशा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जब से आया हूं तब से देखता हूं ये पढ़ता रहता है। दस्तरखान लगाया गया, खाने को दस्तरखान में लाया गया। जब खाने की बारी आई, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, भाई क्या बात है, जब से मैं आया हूं तब से देख रहा हूं हमेशा तुम अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कहा क्या बताऊं, जब से मैंने अस्तगफिरुल्लाह की फजीलत सुना है, जब से मुझे पता चला है कि इस्तिग़फ़ार की कितनी फजीलत है, तब से लगातार मैं इस्तिग़फ़ार कर रहा हूं और मेरी सारी जरूरतें पूरी हो गई है। इससे पहले बहुत तंगदस्त था, भिखारी था, मांग के खाता था, कुछ नहीं आता था घर के अंदर, सारी जरूरतें अल्लाह ने पूरी कर दी। यही इसी के ऊपर भरोसा करके इस्तिग़फ़ार की इतना फायदा, अल्लाह के ऊपर भरोसा किया और इस्तिग़फ़ार लगातार करता रहा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ने सारी जरूरतें, जो भी जरूरतें आई थी, सारी जरूरतें पूरी हो गई, बस एक जरूरत बाकी रह गई है। सोचता हूँ वो अल्लाह कब पूरा कर दे, इसीलिए और कसरत से इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। कौन सी जरूरत है जब तक बाकी रह गई है, जिसकी वजह से तुम इतने कसरत से इस्तिग़फ़ार कर रहे हो? कहा कि सोच रहा हूँ कि जिंदगी में कम से कम एक मरतबा इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात, जिंदगी में कम से कम एक मरतबा बहुत नाम सुना है इमाम अहमद बिन हंबल का। सोच रहा हूँ कि कब उनसे मुलाकात हो जाए इमाम अहमद बिन हंबल से, कहा खुश हो जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये मैं ही इमाम अहमद बिन हंबल, कहा मैं ही इमाम अहमद बिन हंबल हूँ, अल्लाह ताला ने तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। मेरे भाइयों और दोस्तों, जनरेटर चालू, तो इस्तिग़फ़ार के बहुत सारे फायदे हैं और इंसान की हर जरूरतें पूरी करने के लिए तक़वा इस्तिग़फ़ार, चाहे जो भी जरूरत है। आज इंसान हर तरह की परेशानियों में मुब्तला है, हर तरह की परेशानियों, कौन सी परेशानी नहीं है जो इंसानों के अंदर ना हो। किसी के पास मालो दौलत नहीं, वो भी परेशान है, किसी के पास माल बहुत ज्यादा है, वो भी परेशान है इंसान, किसी को औलादें नहीं होती, वो भी परेशान है, किसी को औलाद अगर हो जाती है तो वो भी परेशानी का सबब है, कोई बीमारी आ जाने में परेशान है, कोई तंगदस्ती में परेशान है। हर तरह की परेशानियां इंसानों के अंदर है और उन तमाम के तमामों का इलाज एक ही है और वो इलाज तक़वा
और इस्तिग़फ़ार, इसको लाजिम पकड़िए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सारी जरूरतों को पूरा कर देगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आता है और आके कहता है कि हसन बसरी हम क्या करें, ये कहत साली आ गई है, कहत साली का वो शिकवा शिकायत करते हैं कहत साली की। हसन बसरी ने कहा जाओ इस्तिग़फ़ार करो। दूसरा आदमी आता है, वो आके शिकायत करता है हसन बसरी ये क्या कहते हैं कि बारिश नहीं हो रही है, कहा जाओ इस्तिग़फ़ार करो। एक और आदमी आता है, कहा हसन बसरी बहुत ज्यादा तंग दस्ती आ गई है, बिल्कुल माल ही नहीं दौलती है, कुछ नहीं है, तंग दस्ते हो, मोहताज हो, गरीब हो, का इस्तिग़फ़ार करो। एक और आदमी आता है, हसन बसरी क्या करूं, अब तक घर के अंदर कोई औलाद नहीं है, सोचता हूं अल्लाह ताला कोई औलाद दे दे, का जाओ जाके इस्तिग़फ़ार करो। पूछने वाले ने पूछा हसन बसरी क्या बात है, चार आदमी आए, अलग अलग बेटा था सबका, आपने सबका एक ही इलाज बताया, का तुमने नहीं पढ़ा है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बयान किया, अल्लाह ताला ने कुछ सूरह नूह के अंदर बयान फरमाया, फक़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नाति व यजअल लकुम अनहारा। ये आयत अल्लाह ने खुद बयान फरमा दिया तमाम बीमारियों का इलाज कि तुम इस्तिग़फ़ार करो कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन की, अल्लाह तुम्हारी तमाम जरूरतों को पूरी कर देगा। इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। व युमदिदकुम, तुम्हारे मालों को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, व बनीन, और तुम्हें औलाद से भी नवाज देगा, व यजअल लकुम जन्नाति व यजअल लकुम अनहारा, और तुम्हें जन्नत